السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الاربعاء 9 ذی القعدہ 1443 ہجری۔ آج چہارشنبے کا دن ہے جس کو بدھ کا دن بھی کہا جاتا۔ جون کی 8 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج سورہ اعراف آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل کہہ دیجئے، انما حرم ربی، بے شک میرے صرف حرام کیا ہے میرے رب نے، الفواحش فحش چیزوں کو، بے حیائی کو، ما ظہر منہا جو کہ ظاہر ہو جائے، وما بطنا اور جو کچھ کے پوشیدہ رہے، والاسم اور گناہ، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق ناحق طور پر سرکشی کرنا، وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ تم شرک کرنا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس سے پہلے آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سو تمہارے اوپر زینت اور جو سو کھانے پینے کی چیزیں جو نازل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت میں تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور یہ کہ جو سو جب اور یہ جو سو نعمتیں سارے اللہ کی طرف سے جو سو مومنوں کے لیے ہے، اور آخرت میں خالص ہے ان کے ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد میں پہلے کون حرام کیا ہے جو نفی کے طور پہ تھا، اب اس کے بعد میں پازیٹیو ٹرم میں یقیناً جو حرام چیزیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت میں حرام وہی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جو سے یہاں پر گن رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ بے حیائی اور فحش چیزیں جو ظاہر ہو جائے وہ بھی، اور چھپی ہوئی بھی، یعنی اعلانیہ طور پر بھی اور چھپا کر بھی جو فحش اور برائی کے کام ہے اس سے، اور یہ کہ جو سو تم کوئی گناہ کا کام کرو، اور یہ کہ تم سرکشی کرو ناحق طور پر، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کیا، بغیر کسی دلیل کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنا لو، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی اکثر جو دیکھا جاتا ہے لوگ بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، جو در حقیقت میں ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ ظاہر اور باطن، یعنی ظاہری اور پوشیدہ دونوں طریقے کے بے حیائی کے کام۔ اسی طریقے سے جو سو گناہ کے کام، وہ سارے گناہ جو کہ گناہ میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو سو بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، یعنی بغیر حق کے، کوئی آپ کے پاس حق نہیں ہے اس کے باوجود بھی جو سو سرکشی کرنا، اور یہ کہ جو سو اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرنا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ ساری کے ساری یقیناً گناہ کے کام ہے، یہ حرام کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستاخرون ساعتن نہ ہی ایک گھڑی، ایک لمحہ تاخیر ہوگی، ولا یستقدمون اور نہ ہی ایک گھڑی اور ایک لمحہ جو سو آگے بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، تو جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ جلدی ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے خاص طور پہ وہ معنی ہے جو امتوں کو، یعنی مجموعی طور پر کوئی جماعت کو، کوئی گروہ کو، کوئی امت کو جو سو اللہ تعالیٰ جو وقت دیتا ہے ان کے اوپر عذاب لانے سے پہلے، وہ مراد ہے۔ یعنی کسی قوم کو جیسے قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، جو قوم عاد وغیرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وقت مقرر رکھا تھا کہ فلاں دن فلاں گھڑی ان کے اوپر عذاب آنا ہے، تو وہ عذاب کا جو وقت آتا ہے تو اس سے ایک لمحہ نہ پہلے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ سے آگے ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہے۔ دوسرے، امت کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ہر ایک انسان کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وہ وقت مقرر آ جاتا تو نہ ایک لمحہ آگے ہٹ سکتا، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا۔ تو انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے موت کا وقت ہے، یعنی جو انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو کب موت آئے گی، کہاں پر موت آئے گی، یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ تو جب اس کا انسان کے مرنے کا وقت آ جاتا تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ
पीछे हो सकता है। ये तो अल्लाह की तरफ से पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही जो सो मुकर्रर है। अब अक्सर जो सो लोग जो होता क्या है, कभी कोई हादसा हो जाता है, कोई हादसे में कहीं पर कोई इंसान जाने के बाद वहाँ पर वो उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है, या कोई ऐसी बड़ी आफत आ जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे 1 मिनट पहले अगर वो चला जाता, वहाँ से हट जाता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता, या 1 लम्हा पीछे आता तो ऐसा नहीं होता, या वो उस वक़्त में वो 2 मिनट 5 मिनट पहले वहाँ से चला गया तो ऐसा होता। ये अगर और मगर उसी तरीके से डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में अगर हम थोड़ा-सा जल्दी करते तो शायद बच जाता था। ये सारी की सारी बातें कहना दर हकीकत में शिर्किया बातें हैं और शिर्क का रास्ता खोलने वाली बातें हैं। हाँ, अगर वो वक़्त आने से पहले जो इंसान कोशिशें करना है, तदबीरें करना है, कर ले, कर सकता है, अच्छी से अच्छी कोशिश करे, जल्द से जल्द सो बीमार को जो सो हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की कोशिश करे। लेकिन ले जाने की कोशिश की है, सब कुछ हो गया, वो इसका इंतकाल हो गया, तो अब ये अगर और मगर कहना फ़ायदा नहीं है, बल्कि दर हकीकत में जो सो शिर्क का दरवाज़ा है खोलने वाली बात है। क्यों? कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो चाहा जो हुआ वो सबसे वही बेहतर था। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए भी और उम्मतों के लिए भी एक वक्त मुकर्रर रख दिया है। जब वो वक्त आ जाता तो ना एक लम्हा आगे हट सकता, ना एक लम्हा पीछे हट सकता। लेकिन अफसोस की बात क्या है, इसके बरखिलाफ हमारे पास जो दीन के नाम पर, जो दीन की तबलीग के नाम पर जो किताबें पढ़ी जाती है, उसमें ऐसे कितने ही ऐसे वाकयात लिखे गए, ऐसे किस्से लिख दिया है लोगों ने, जिसमें कह दिया कि फलां कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने कह दिया कि याद रखना मैं अगले हफ्ते जो सो मैं मर जाऊंगा। किसी ने जो सो पूछा कि यहाँ पर कोई पाक और साफ जगह है जहाँ पर कोई मर जाए, तो किसी ने वो पूछने जिससे पूछा उसने कहा अंदर आओ, जहाँ पर चाहे जाके मर जा। तो इस तरीके की जो बातें हैं, और किसी के बारे में कहा कि वो 2 रकात नमाज पढ़े और लेटे और मर गए, तो ये सब कुछ बातें बेबुनियाद बातें हैं, झूठ है। क्योंकि किसी को, इंसान को एक तो पता नहीं है कि उसका वक्त कब आएगा, और जब उसका वक्त आ जाता तो कोई उसको एक लम्हा ना आगे हट कर सकता ना पीछे कर सकता है। जैसे कि कुछ और ऐसे वाकयात लिखे, किसी ने अपने मौत का वक्त आया तो फरिश्तों से पूछा कि क्या मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, तो फरिश्तों ने कहा कि पढ़ लो। नहीं, ये सब बेकार बातें हैं, तो ये झूठ बातें हैं। क्योंकि जब अल्लाह ताला यहाँ पर जो कह रहे हैं कि किसी उम्मत के लिए, किसी जमात के लिए भी उनके हलाकत का वक्त है, तो वो भी फिक्स्ड है। उसी तरीके से किसी इंसान के लिए भी उसके मौत का वक्त जो है वो पक्का अटल है, एक लम्हा भी ना आगे ना पीछे हो सकता है। या बनी आदम, ए बनी आदम, इम्मा यातियन्नकुम, अगर तुम्हारे पास आए रुसुलुम मिनकुम, तुम ही में से कोई रसूल, यकुस्सुना अलैकुम आयाती, वो बयान करते हो तुम्हारे पर मेरी आयतों को, फमन इत्तका, बस जो कोई तकवा इख्तियार कर लिया, व असलहा, और इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम, तो कोई खौफ नहीं उनके पर, वला हुम यहज़नून, और वो ना कि गमगीन होंगे। यानी ए बनी आदम, अगर मेरे रसूल तुम्हारे पास आए जो तुम ही में से होंगे, और वो तुमको मेरी आयतें पढ़कर सुनाए, तो उस तुम में से जो कोई तकवा इख्तियार करे, यानी अल्लाह की डर इख्तियार करे, और यानी उनके रसूलों की बात को मान ले, और वो अपने हालात को दुरुस्त कर ले, तो ऐसे ही लोगों के ऊपर ना तो कोई खौफ होगा, ना ही कोई गमगीन होंगे। यानी जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा से उनको सबको ये कह रहा है कि जब हम मेरे तरफ से जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आएंगे और तुम उनकी पैरवी करोगे, तो तुम्हारे लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। और ये खौफ और गम कब है? मरने के वक्त में। जब इंसान दुनिया को छोड़कर जा रहा है, तो चाहे वो जितनी बड़े जो सो ऐशो आराम में था होगा, लेकिन जो नेक इंसान होगा, जब मुस्तकबिल का उसका जो आगे की जो मंजिल है वो जब देखेगा, तो उसको कोई गम नहीं होगा या दुनिया के छूटने की वजह से। और उसी तरीके से उसको जो आगे की जो मंजिल बताई जाएगी, तो उस वजह से उसको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा, यानी गम नहीं होगा कि जो छूट रहा है, और उसको खौफ नहीं होगा मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि दोनों ही जगह से उसको खुशखबरी होगी। लेकिन इसके बरक्स में जो गुनहगार होंगे, जो बुरे आदमी होंगे, उनको चाहे वो दुनिया में जितनी ही मुसीबत और तकलीफ में भी थे होंगे, लेकिन जब मुस्तकबिल का जो उनको देखा जाएगा, तो उनको खौफ, बहुत ज्यादा खौफ होगा, क्योंकि आगे जो उनका मंजिल है वो बहुत खतरनाक है, और जो दुनिया जो छूट रही है उसका उनको गम भी होगा। वल्लज़ीना कज़्ज़बू, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया, अन्हा वस्तकबरू अन्हा, और उससे तकब्बुर किया, उलाइका, यही लोग है, अस्हाबुन नारी, दोज़ख वाले,
आग वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। देखें पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने, जो लोग अंबिया और रसूलों की बात को मानेंगे, तक़वा इख्तियार करेंगे, अपनी जो इस्लाह करेंगे, तो उनके लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। और वो लोग जो कि झुटलाया अल्लाह की आयतों को और तकब्बुर किया उससे, यानी अल्लाह की आयतों से तकब्बुर किया, मुंह मोड़ लिया, एराज किया, ऐसे ही लोग हैं जो कि आग के साथी है, यानी वो हमेशा उनकी जहन्नम में हमेशा रहेंगे। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो वो जो कि अल्लाह की निशानियों के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ को झुटलाना और तकब्बुर करना, मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने किसी रसूल और नबी के जरिए से कुरान या उससे पहले की जितनी भी किताबें थी उनकी आयतें नाजिल किया, तो उसको झुटला दिया, कहा कि नहीं, बोले हम इसको नहीं मानते, ये झूठी है या किससे कहानी है, इस तरह से कह देना, या फिर उसके साथ तकब्बुर करना, उसको इनकार कर देना, उसको जो सो रद्द कर देना, तो ये ऐसा जो करेंगे वो तो आग वाले होंगे। तो ये पहली कौमों के लिए भी था, और अब हमारे लिए भी क्या है कि जो कुरान में अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल कर दिया है, उनको झुटलाना, ज़ाहिरी तौर पे तो कोई इंसान हो सकता है ना कहे कि ये झूठ है, लेकिन उसके ऊपर यकीन नहीं रखना। जैसे कि मिसाल के तौर पर कुरान और हदीस में हमको कह दिया गया कि मौत के बाद में हर इंसान को जो सो क्या कहते हैं कि ये तो अज़ाब ख़बर के बारे में भी है, फिर उसके बाद के इंसान जब मर जाएंगे तो क़यामत के वक्त में सबको उठाया जाएगा, फिर जो सो तराजू कायम होगा, जन्नत और जहन्नम है, और लोगों के अमाल के हिसाब से उनको जन्नत और जहन्नम में डाला जाएगा। अब ये सब कुछ कुरान और हदीस में की निशानियां हैं, आयतें हैं। अब इसको हमने पढ़ लिया, सुन लिया, अब उसके बाद में जो सो सुन तो लिया, लेकिन कह दे कि किसने देखा है, वो जब होगा जब देखेंगे। कितने ही मुसलमान हैं जो इस तरीके से करते हैं, बल्कि जबान से अगर ना भी कहें तो उनकी सोच और फिक्र ऐसे ही होती है कि ठीक है भाई, कहते हैं, कह दिया, किसने देखा, कौन देखा, जब आएगा तब देख लेंगे, पता नहीं हमसे पहले लोग पूरे चले गए, हम भी जाएंगे। इस तरीके की जो सोच है या फिक्र है या इस तरीके का रवैया है, ये दर हकीकत में अल्लाह की आयतों को झुटलाना और उसके साथ तकब्बुर करना है, यानी हक का इनकार करना है, जो कि बरहक है। अगर हम अपनी आंखों से कोई चीज देखते हैं तो जिस तरीके से यकीन होता है, उससे कहीं ज्यादा यकीन हमको जब कुरान और हदीस में कोई बात आती है तो उस पर यकीन होना चाहिए। और जब यकीन होगा तभी हम उससे डरेंगे। तो इंसाफ जो आखिरत के बारे में जो है कि अल्लाह के पास खड़े होना है, अल्लाह ताला हर हर अमल का हिसाब लेगा और हमसे जो सो पूछोगी। और जैसे कहा गया कि फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई खैर और भलाई का काम किया होगा, कल क़यामत में वो अपने सामने मौजूद पाएगा। और जिस किसी ने भी जर्रे और शर यानी राय के बराबर भी कोई शर का बुरा काम किया होगा, वो भी उसको अपने सामने पाएगा, मौजूद पाएगा। तो ये क्या है, इस पर ईमान जब होगा और आखिरत में अल्लाह के पास हमको हिसाब देना है, तो दुनिया में कोई देखे ना देखे, अल्लाह हमको देख रहा है। तो ये सारी चीजें, ये गैब के जो चीजें हैं, इस पर हमारा ईमान जितना मजबूत होगा, फिर उतना ही हमारा जो सो अमल बेहतर होगा। और जितना हमारा इस पर ईमान कमजोर होगा, उतने ही हम गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे होंगे, गुनाहों में मुब्तला हो रहे होंगे। तो ये है कि अगर किसी ने जो इनकार किया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और जिसका ईमान जितना मजबूत होगा उस पर, उतना ही वो नेकी करने में आगे बढ़ेगा। फमन अज़लम, बस उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन, उससे जो कि इफ्तरा अल्लाह का ज़िबन, जो अल्लाह पर झूठ बांधे, और कज़्ज़ब भी आयाती ही, या फिर उसकी आयतों को झुठला दे। उलाइका, यही लोग हैं, यनालुहुम नसीबुहुम, इन्हें पहुंचेगा इनका हिस्सा, मिनल किताबी, जो लिखा हुआ है, हत्ता, यहाँ तक है, इज़ा जाअतुहुम रुसुलुना, जब उनके पास आ जाएंगे हमारे रसूल यानी हमारे फरिश्ते, फवत यतवफ़ौनहुम, उन्हें उन वफ़ात दे रहे होंगे, उन्हें जब उनकी रूहों को कब्ज़ कर रहे होंगे, क़ालू, कहने लगेंगे, ऐना मा कुंतुम, कहाँ है जो तुम थे, तदऊना, पुकारते, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, यानी कहाँ है वो हस्तियां, वो बुजुर्ग या वो वलियां जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे। क़ालू, वो कहने लगेंगे, ज़ल्लू अन्ना, वो गुम हो गए हमसे, वह शहीदू, और वह गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों पर, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि वो यकीनन काफिर थे। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, गौर से सुनिएगा। क्या है, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह की आयतों को झुटलाए, या अल्लाह की आयतों जिस यानी या तो वो झूठा कहे, या तो फिर अल्लाह की आयतों के साथ उसको इनकार करे। और जो सो ऐसे ही लोग हैं जिनको जो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख रखा है वो तो हिस्सा उनको मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि जब उनकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते जब आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के साथ दूसरों को जो तुम पुकारा करते थे, यानी अल्लाह के साथ जिसको शरीक करते थे, वो कहाँ है। वो कहेंगे वो तो हमसे गुम हो गए, वो तो हमसे
ہم ان سے دور ہو گئے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی رہی، اللہ کے احکامات آتے رہے، تو اس کو جھٹلاتا رہا، اس کی تعویلیں کرتا رہا، اس کے بارے میں اس کو جھوٹا کہتے رہا، تو اس کو دنیا کا جو حصہ ہے وہ تو مل جائے گا، اس کو جو مقرر ہے۔ اس کے بعد جب اس کے موت کا وقت آئے گا اور فرشتے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اسی وقت میں فرشتے ان کو پوچھیں گے، ہاں بھائی تم دنیا میں تو فلاں کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا علی المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یہ فلاں یا فلاں جو دنیا میں اٹھتے بیٹھتے پکارا کرتے تھے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آج دیکھیں دنیا میں کیا ہے، ان کے منہ کے اوپر اللہ کا نام آتا ہی نہیں، جب اللہ کو پکارنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے بے ساختہ منہ سے جو سو یا علی المدد نکلتا ہے، یا غوث المدد کا مدد نکلتا ہے، کسی کو جیسے کچھ اور نکلتا ہے، کوئی اور نعرہ لگاتا ہے، کوئی کچھ اور نعرہ لگاتا ہے۔ تو دنیا میں جب کبھی یہی نعرے لگائے تھے، اور جب ان کے موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اسی وقت میں فرشتے پوچھیں گے، ہاں بھائی تم ان کو بار بار اٹھتے جاگتے سوتے اٹھتے کہتے تھے نا بھائی ہم کو مدد کرو، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، اور یہ اور وہ، اب تو تمہاری موت کا وقت آ گیا، کہاں ہے تمہارے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ اور اس وقت میں ان کی جو حالت ہوگی، اور یہ دیکھیں گے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، قیامت میں ان کا دامن پکڑ کے جو جنت میں جانا دور، قیامت میں ان کو بخشوا دینا دور، جب موت کا وقت آئے گا اسی وقت میں ان کو پتہ چلنے لگ جائے گا، کیونکہ ایک ہی اکیلے بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ان کے سامنے ہوں گے، اور یہ چاہے چیخیں چلائیں، جس کو پکارتے تھے پکارنے کی کوشش کریں، کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں ہوگا، اور یہ فرشتے ہوں گے اور یہ ہوں گے۔ تو اس وقت میں جب فرشتے ان کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہے وہ، اس وقت میں وہ جواب دیں گے، یعنی نادم ہو جائیں گے، اقرار کر لیں گے، سمجھ جائیں گے، اور کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، یعنی ہم دنیا میں تو پورا یہی بھروسہ کرتے تھے، کہ یہی امید رکھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے باڈی گارڈ سے، یہ ہمارا پروٹوکال ہے، ہم کو آگے پیچھے سامنے لے کر کے سیدھا جو ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے، گرین چینل کے ذریعے سے ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ یہ جو خوش فہمیاں اور خواہشیں اور امنگیں تھیں، وہ سب کچھ جاتی نظر آ جائے گی، اور وہ مان لیں گے اور اقرار کر لیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے۔ نہ صرف وہ، بلکہ وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ یقیناً ہم کافر تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، ہم نے جو سو جھوٹا سمجھا اللہ کی نشانیوں کو، جب لوگوں نے ہم کو ڈرایا کہ اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کو شریک مت بناؤ، یہ کوئی تمہاری مدد نہیں کریں گے اللہ کے سوا، ہم تو اس کو جھٹلاتے رہے، یقیناً ہم کافر ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ پیدائشی کافر یا جس کا نام کافر ہوگا وہ کافر نہیں ہے، جو خاندانی مسلمان بھی ہوگا، مسلمان نام بھی ہوگا، لیکن دن رات جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا رہا ہو مدد کے لیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اور ان کو اگر کہا جائے دنیا میں کہ یہ غلط ہے، اور زیادہ پکاریں گے ہم کو ستانے کے لیے، اور جو سو ہم کو یعنی دکھانے کے لیے، اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے جو سو اور زیادہ کرتے ہیں۔ تو کرتے رہیں، دنیا میں کرتے رہیں گے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا اسی وقت سے ہم کو احساس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ بیکار ہے، رائگاں تھا، اور وہ مان لیں گے، اقرار کر لیں گے، اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً ہم کفر کرنے والے تھے، ہم جو سو غلطی میں تھے، ہم جو سو انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ اب اندازہ کریں اس وقت میں نادم ہونے کا یا مان لینے کا اور کہنے کا کہ ہم تو یقیناً ہم مانتے ہیں کہ ہم کفر کرتے تھے، یا وہ ہم سے گم ہو گئے، تو اس وقت میں کیا یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس وقت میں توبہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، نہ ان کی توبہ اس وقت میں کر سکتے ہیں، نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس وقت میں تو بس اب انجام کا انتظار ہے، اور وقت تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آج دنیا میں ہم کو جب سانسیں چل رہی ہے، اگر ہم کو احساس ہو گیا صحیح معنی میں کہ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے تھے یہ غلط تھا، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو ہماری مدد کر سکتی ہے اور ہم کو دنیا میں اور آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر کوئی پہنچا سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں کہتے کہ میری بیٹی دنیا میں جو مجھ سے لینا ہے لے لے، کل قیامت میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، اگر تو اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کر سکتے تھے تو اپنی بیٹی کو یہ بات نہیں کہتے۔ نبی تو اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں، اور آج ہم تو جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جس کو ہم پہچانتے تک نہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں وہ ہم کو بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ قد دخلوا، قالت خلو، کہا جائے گا، فرمایا جائے کہ داخل ہو جاؤ گا، فی جماعتوں کے اندر، یعنی گروہوں کے اندر، قد خلت جو گزر چکے ہیں،
मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, मिनल जिन्नि वल इंसी जिन्नात और इंसानों में से, फिन नारी आग में, कुल्लमा दखलत उम्मतुन जब भी कोई जमात कोई गिरोह दाखिल होगा, लानत उख्तहा लानत करेगी उसकी बहन, हत्ता यहाँ तक के इज़ा दरकू फीहा जमीयन जबकि सबके सब उसमें पहुंच जाएंगे, कालत उखराहुम कहेगी उनके पिछले कौम के लोग, लिओलाहुम जो उनके बाद में जो आएंगे उनके, रब्बना ए हमारे रब, हाउलाई ये है वो, अजल्लुना जिन्होंने हमें गुमराह किया था, फ़आतिहिम अज़ाबन ज़ैफ़न इन्हें दुगना अजाब दे, मिनन नारी आग में से, खाला कहा जाएगा, लिकुल्ली ज़ैफ़ुन हर एक के लिए दुगना होगा, वलाकिन और लेकिन, ला तालमुन तुम नहीं जानते। देखें उसी का कंटिन्यूएशन है, जब उनको जिस फरिश्ते आएंगे उनकी जान रूहें कब्ज कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे, वो इकरार कर लेंगे कि वो तो हमसे गुम हो गए और अपने खिलाफ ही गवाही देंगे कि यकीनन वो जो सो काफिर थे। अब ये गवाही देने से, गुम होने का कहने से, इनके सच्चे होने की वजह से इनको जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि क्या होगा, उनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ तुम पिछली कौमों के साथ, पिछले गिरोहों के साथ जो ऑलरेडी जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं, उनके साथ तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और क्या कहा जाएगा, जिन्नात और इंसान में से, यानी तुमसे पहले जो और जो जिन्नात और इंसानों की जो गिरोह हैं जो जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी जो सो आग में और दोज़ख में दाखिल हो जाओ। अब होगा क्या, जब कभी अब जहन्नम में जहन्नम भड़की हुई होगी, उसके अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होंगे, पहले से कोई बहुत सारे टोलियां और गिरोह मौजूद होंगे, तो जब कभी भी और एक नए गिरोह को और एक नई जमात को उसके अंदर दाखिल किया जाएगा, तो उससे पहली वाली उसकी बहन, मतलब ये है कि उससे पहली वाली जमात और गिरोह जो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद होगी, वो उसके ऊपर लानत करेगी, और जो सो यहां तक कि यानी ये सिलसिला चलते रहेगा, एक जमात उसके अंदर मौजूद है, उसके बाद में और एक जमात को जब भेजा गया तो पहली जमात उनके ऊपर लानत करेगी, क्योंकि उन जब वो आएंगे तो उनके ऊपर और आग बढ़ेगी और उनको तंगी हो जाएगी, तो उनके ऊपर लानत करते रहेंगे। तो ये सिलसिला चलते रहेगा यहां तक कि जो सो पूरे के पूरे जिन जिनको जहन्नम में जाना है, वो सारे गिरोह, सारी जमातें जहन्नम में जमा हो चुके होंगे। अब होगा क्या, जब सब जमा हो चुके होंगे तो एक जमात दूसरी जमात की तरफ पलट पलट के देख रही होगी, और पहले से जो मौजूद होंगे, यानी जो आखिरी में जो लोग आएंगे, वो जो हमसे उनसे पहले से जो जहन्नम में मौजूद होंगे, उनको जब देखेंगे, उनके तरफ देख कर कहेंगे, या अल्लाह ये है वो लोग जिन्होंने हमको गुमराह किया था। यानी पहले से जो उनके जहन्नम में जल रहे होंगे, मौजूद होंगे, उनके बारे में जब उनको पहचान लेंगे, देख लेंगे, तो चीख उठेंगे, कहेंगे कि या अल्लाह ये लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, इनको दुगना अजाब दे। और तो उस वक्त उनको डांटा जाएगा और कहा जाएगा, तुम खामोश रहो, तुम में से सबको हर एक को दुगना अजाब मिलेगा, लेकिन तुम नहीं जानते। अब यहाँ पर सोचने की बात है, जिनको पहचान रहे होंगे, जो पहले से जहन्नम में होंगे, वो कौन होंगे, वो वही होंगे जिनको इन लोगों ने दुनिया में अपना बड़ा समझा था, अपने पीर और मुर्शद समझा था, जिनके पीछे चलते चलते ये जहन्नम में आ गए थे, जिनकी अंधी जो बातें वो कह देते थे, अंधी तौर पर उनकी तकलीद कर लेते थे, उनके सामने सर झुका देते थे, वो कहते कि फलां की नजर कर लो, फलां की नियाज कर लो, फलां को या ख्वाजा गरीब अलमदद कह दो, या गौस अलमदद कहो, ये नारे लगाओ, ये इस तरीके से कामा कर लो, और ये सारे शिरकिया काम करो, नजर नियाज करो, इनकी फातिहा करो, उनकी चीजों से चिल्ला करो, उनका ये करो, ये जो कुछ ऐलान करते थे, जो उनको बुलाते थे और ये उनके पीछे पीछे चलते थे, और उसके खिलाफ जब इनको कहा जाता था तो लड़ने को आ जाते थे। देखिए आज दुनिया में जो बुरे मौलवी लोग होते हैं, उनके पैरोकारों को जरा बता दो आपके, भाई तुम्हारे बड़े जो कहते हैं ये गलत बात है, ये जो कह रहे हैं गुनाह का काम है, ये शिर्किया काम है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, वो लड़ने को आ जाएंगे, भिड़ने को आ जाएंगे, उनके खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं होते, यानी उनकी तायीद करते हैं, उनके अंधे बनकर उनके ऊपर भरोसा करते हैं, कहते हैं कि हमारे बड़े क्या गलत थोड़ी है, वो तो हम तो आशिकाने रसूल है, बोले हम तो आशिकाने औलिया है और पता नहीं क्या कुछ है, और तुम तो बोले बद्दीन हो, तुम तो यो हो, तुम तो ऐसे हो। तो इस तरीके से दुनिया में तो अपने बड़ों के बारे में, अपने जो बुजुर्ग है, जो उनके जिनके पीछे चलते हैं, उनके बारे में एक भी बुरा लफ्ज सुनने को तैयार नहीं होते हैं, उनके बारे में मानना नहीं चाहते कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं, बल्कि कहते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं बिल्कुल सही है, और हमको तो कुरान और हदीस का पता नहीं है, जो ये कहते हैं हम उनके पीछे चलते हैं। अब क़यामत में जब हालत देखेंगे कि एक तो पहले के मौत का वक्त जब आएगा, देखेंगे फरिश्ते उनको पूछेंगे, उसी वक्त में उनको एहसास हो जाएगा कि ये सब कुछ धोखा था, ये सब कुछ आंखों का धोखा था, हमको झूठ बोला गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब क़यामत में जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जहन्नम में देखेंगे कि हमसे पहले वो मौजूद है ऑलरेडी, तब उनके दिल में
बहुत तकलीफ होगी, उनको बहुत एहसास होगा, और उनको और अल्लाह के सामने चीख पड़ेंगे, कहेंगे या अल्लाह ये लोग हैं जो हमको जो सो गुमराह किए थे, जिनके जरिए से, जिनके वजह से हम गुमराह हुए थे, इनको दुगना अजाब दे। जरा कंपेयर करिए, दुनिया में क्या है, उनके खिलाफ एक बुरा लफ्ज, एक बुरी बात सुनना नहीं चाहते, और क़यामत पे होगा क्या, जब हकीकत सामने आ जाएगी तो यही अल्लाह से शिकायत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। तो काश वो एहसास अगर दुनिया में हो जाए, दुनिया में ये समझ ले कि हो सकता है ये जो दो लोग कह रहे हैं अपने पेट के गरज के खातिर, अपना धंधा पानी चलाने के खातिर, अपनी बुरी बातों को करने के लिए हमको झूठ बोलकर हमको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सो क्या कहते हैं कि नजराने वगैरह से उनका पेट चलता है, तो उस तरीके से लोगों को गुमराह करके रख रहे हैं। हो सकता है ये गलत बोल रहे हैं, और हमको सोचना चाहिए, अपना दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये एहसास कर ले कि तौबा कर लेंगे और उनको छोड़ देंगे तो कामयाबी होगी, लेकिन अगर दुनिया में अंधे बन के उनके पीछे चलते रहे तो अल्लाह ताला उसका सिनारियो, उसका पिक्चराइजेशन करके बता रहा है कि कल क़यामत में जरूर जरूर होके रहेगा। जिनको आज हम बुरा सुनना नहीं चाहते उनके बारे में, कल उन्हीं के बारे में अल्लाह के सामने शिकायत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। लेकिन जब कहेंगे तो अल्लाह ताला इनको तसल्ली नहीं देगा, हाँ बिल्कुल सही, यकीनन तुम तो उनके पीछे चल के तुमको गुनाह में डाल दिया, तुमको जहन्नम में डाल दिया, तो हम उनको सजा देंगे। बल्कि अल्लाह ताला इन्हीं को डांटेगा और कहेगा तुम सबको दुगना अजाब मिलेगा, लेकिन तुम जानते नहीं हो। तो पता क्या चला, दुनिया में हम अंधे बन के किसी के पीछे चलते रहे तो ये हरगिज़ दलील नहीं बनेगी, ना ये हमको बहाना बनेगा, ना ये हमारे लिए कोई उज़र बन सकता है कि कल क़यामत में हम अल्लाह के सामने कह सके कि या अल्लाह हम तो फलां को पीछे चलते थे, फलां ने हमको गुमराह कर दिया, फलां तो हमको ये सही रास्ता बोल के दिखाया था, हम क्या करें। जैसे कि आज दुनिया में हम ये समझ रखते हैं, अक्सर लोग यही समझते हैं, तो हम तो किसी के पीछे चल रहे हैं भाई, वो जाने बेहतर। बल्कि लोग डिटाई के साथ कहते हैं भाई वो जो कह रहे हैं वो जाने, अगर वो गलत है तो उन्हीं को पकड़ होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में ये नहीं बता दिया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में किसी में बताया, ना अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं पर एक गारंटी दिया कि अगर तुम किसी बड़े के पीछे चलते हो तो तुमको नहीं पूछा जाएगा और बड़े से पूछा जाएगा, बल्कि हर इंसान को उसके अपने अमाल के बारे में पूछा जाएगा। वो कहाँ से सीखा, किसके ऊपर भरोसा किया, किसकी बात सुनकर गया, ये नहीं पूछा जाएगा। तो हमको अपने अमाल की फिक्र होनी चाहिए। हम जो अमल कर रहे हैं, जो अकीदा रख रहे हैं, उसको जांच लें, उसको पड़ताल कर लें, ताकि वो हकीकत में कुरान और हदीस के मुताबिक हो, ना कि कुरान और हदीस के मुखालिफत में हो। और कुरान और हदीस के मुखालिफत में हो, सारी दुनिया उसको सही कहती थी हो और हम उनके पीछे चलते थे हो, तो कल क़यामत में ये उज़र नहीं पेश कर सकते कि सारी दुनिया तो उसी पे चल रही थी, या अल्लाह मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला कहेगा कि सारी दुनिया भी तो तुम्हारे साथ आज जहन्नम में है, तो उन्हीं के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ। तो बहरहाल ये मामला है। बल्कि दूसरी जगहों पर तो और अच्छी वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने उनके हालत को बयान किया है। बल्कि इसके अंदर भी जैसे ना एक दूसरे को लान तान कर रहे होंगे, पहले वाले जो जहन्नम में मौजूद होंगे, जो नया गिरोह आएगा उनके ऊपर वो लानत करेंगे, उसके बाद और एक कोई गिरोह आएगा तो ये सब उसके ऊपर लानत करेंगे। तो अंदाजा करें कि ये सब दुनिया में क्या थे होंगे, आपस में एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे की मददगार थे, लेकिन वहां पर एक दूसरे पर लान तान करेंगे। और उसी तरीके से जब क़यामत के दिन जब जहन्नम में जब देखेंगे कि जिनके पीछे चल चल के जहन्नम में चले गए, उनको अपने सामने देखेंगे और वो जो सो इनको धिक्कार रहे होंगे, इनको दफा कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि दूर हो जाओ। जैसे कि आगे भी बात आ रही है, वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे तो जब तफसीलात है। लेकिन बात क्या है कि जब वो उनको देख के, वो उनके बड़े जो है दुनिया में तो उनको गुमराह करने में बड़ा वो करते थे, हम तुमको ऐसा करेंगे, हम तुमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, दावे करते थे। लेकिन वहां पर जब ये बड़े उनको देखेंगे तो उनको धिक्कार रहे होंगे और कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तुमको जानते ही नहीं। उस वक्त में जो ये उनके पीछे चलते थे, वो एहसास हो जाएगा उनको कि ये लोग हमको गुमराह कर चुके हैं। तो अल्लाह से ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में जाने दे, ताकि हम दुनिया में जाकर ये जो हमारे जो बड़े हैं, इन लोगों ने जो हम उनको दुनिया में हम उनके पीछे पीछे चलते थे, उन लोगों ने हमको यहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन दोबारा हम दुनिया में जाएंगे तो हम उनको अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे, हम उनको पैरों के नीचे उनको ऐसे ही जलील करेंगे जैसे वो आज हमको जो जलील कर रहे हैं दुनिया आखिरत में। तो उस वक्त में इस तरीके की हालत होगी। लेकिन उस वक्त में ये चिल्लाना, चीखना और ये जलील होना और ये सारा चीजें कोई फायदा नहीं है। हाँ, इस दुनिया में रहते रहते अगर आप हक और बातिल को फर्क कर लें, और जो अल्लाह के तरफ बुलाने वाले कौन हैं और शैतान के तरफ, और जो सो क्या कहते हैं कि
अल्लाह के अलावा जो शिरक और बिदात की तरफ जो लोगों को बुलाते हैं, तागुत की तरफ जो बुलाते हैं, उनमें फ़र्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई बुलाने वाला इंसाफ के साथ अल्लाह की तरफ बुलाने वाला नहीं होता। क्योंकि आज हर कोई दीन की तरफ बुलाने की दावत करता है, हर कोई जन्नत की तरफ बुलाने की दावत करता है, हर कोई यही दावा करता है कि हम ही जन्नती है। सबके दावे तो है, लेकिन फिर वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, तो 72 कौन होंगे? तो आज कोई है जहन्नम में जाने वाला अपने आप को ऐलान करता हो कि हम जहन्नम में जाने वाले हैं, हमारे साथ आओ? कोई नहीं ऐलान करता। हर कोई यही दावा करता है कि हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, हमारा ही रास्ता सही है, हमारे पीछे चलो, हम जन्नत में लेके जाएंगे। तो पता क्या चला, हर फिरका तो दावा करता है, लेकिन जाने वाला फिरका तो एक ही होगा, और वो फिरका होगा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होगा और सहाबा के तरीके पे होगा, जो कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमाल और अपने अकीदे को करा हुआ होगा। तो आज हमको अपने अमाल, अपने अकीदों को जो सो जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, क्रॉस चेक करने की जरूरत है कि क्या वाकई हमारे अमाल, हमारे अकीदे कुरान और हदीस के मुताबिक है। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो आज भी मौका है, हम अपनी हालत को दुरुस्त कर सकते हैं, हम यू टर्न ले सकते हैं, अपने हालत को बदल सकते हैं, क्योंकि आज मौका है। अल्लाह की तरफ से अभी मौत का वक्त नहीं आया, और जो सो फरिश्ते हमारे पर मौत के फरिश्ते नहीं आए, तो अब तो हम हालत को बदल सकते हैं। लेकिन जब मौत के फरिश्ते आ जाएंगे तो देर हो जाएगी, उस वक्त में चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वकालत औलाहुमा, वकालत औलाहुम, और कहेंगे उनसे पहले वाले, लिउखराहुम, उनके पीछे जो आने वाले हैं, फमा काना लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, अलैना, हम पर, मिन फजलिन, कोई बड़ाई, कोई बरतरी, फजूकुल अजाबा, बस तुम चको अजाब, बिमा कुंतुम तक्सिबून, इसके सबब जो तुम कमाते थे। देखें, जो पहले से जो बैठे हुए अंदर होंगे पड़े हुए, उनके बारे में जो बाद में आने वाले होंगे, उनको पर लानत करेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह इनको दुगना अजाब दे। तो जो पहले से है वो उनको कहेंगे कि तुमको हमारे पर कोई फजीलत नहीं है, तुम भी जो सो यानी ये तुम अपने आप को जो कह ले रहे हो कि इनके पर इनको अजाब दे अल्लाह और ये कर, तो तुम इससे बचने वाले नहीं हो। मतलब क्या है, ना तुम ये कहकर ये जो सो अपने आप को कमजोर, अपने आप को जो सो मजलूम साबित कर कर तुम जो सो कुछ बच नहीं सकोगे, ना तुमको कोई हमसे फजीलत मिलेगी, ना तुम्हारे हजाब में हल्का होगा, बल्कि वो भी कहेंगे कि चको अजाब को इसके बदले में जो तुम कमाते थे। तो दुनिया में जो कुछ इंसान किया है वो उसकी अपनी कमाई है, किसी ने किसी के कहने पे किया हो या अपने मर्जी से किया हो, वो उसका खुद जिम्मेदार है। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू, बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया, अनहा, उससे, ला तुफत्तहु लहुम, नहीं खोला जाएगा उनके लिए, अबवाबुस्समा, आसमान का दरवाजे, आसमान का दरवाजा, वला यदखुलुल जन्नता, और वो ना दाखिल होंगे जन्नत में, हत्ता, यहाँ तक के, यली जल जमलु, दाखिल हो जाए ऊंट, फिस्सिमिल खियाती, यानी सुई के नाके के अंदर, वो कज़ालिका, और इसी तरीके से नज्जिल मुजरिमीन, हम बदला देते हैं मुजरिमों को। देखें अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इसी तरीके, इन बेशक वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और तकब्बुर किया उससे, यानी अल्लाह की आयतों को इनकार करते रहे और उसको झुटलाते रहे, तो उनको क्या होगा कि उनके लिए जन्नत के आसमान के दरवाजे को नहीं खोला जाएगा और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, हरगिज हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, यहाँ तक के ऊंट जो है वो सुई के नाके के अंदर से दाखिल ना हो जाए। और इसी तरीके से हम बदला दिया करते हैं मुजरिमों को। मतलब क्या है कि जो सो वो लोग जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं और उसके साथ तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे को नहीं खोला जाएगा। मतलब क्या है कि उनको जन्नतों में और जन्नतों में दाखिल करने के लिए उनको आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, और वो जन्नतों में दाखिल उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक के कोई ऊंट जो है सुई के नाके के अंदर से दाखिल ना हो जाए, निकल ना जाए। मतलब क्या है, जैसे कि सुई के नाका जो बिल्कुल बारीक होता है, उसके अंदर से जो बड़ा ऊंचा ऊंट जो होता है वो कभी दाखिल हो सकता है, कभी निकल सकता है, नामुमकिन है। यानी जिस तरीके से सुई के नाके में से ऊंट का जाना नामुमकिन है, उसी तरीके से इन लोगों का जन्नत में जाना नामुमकिन और महाल है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है। अल्लाह ताला बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से एक ऊंट का जो सो सुई के नाके में से जाना नामुमकिन है, उसी तरीके से ये लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और उसके साथ तकब्बुर किया, उनका जन्नत में जाना
नामुमकिन है। अब ये अल्लाह ताला ने ये दलील तो पेश कर दी, सुई के नाके में से ऊंट को जाना जने जैसे ये नामुमकिन है, उस तरीके से इनको जन्नत में जाना नामुमकिन है। लेकिन अफसोस वंस अगेन उनका है, जिनको मैं बार बार रेफर करते रहता हूँ, जो हमारे दीन, हमारे मजलिसों में, हमारे मुल्कों में जो सो दीन के नाम पर, तबलीग के नाम पर जो सो किताबों के अंदर ऐसे वाकया लिखा हुआ है, और उनके मजलिसों में जब आप बैठेंगे तो ये किस्से सुनेंगे आप उनसे, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो ऊंट को जो है सुई के नाके से भी गुजार सकता है। जबकि अल्लाह ताला यहाँ पर ये दलील दे रहा है इस तरीके से कि जैसे कि आम इंसान को पता है, एक मोटा जाहिल से जाहिल इंसान भी जानता है कि सुई के नाके से ऊंट नहीं जा सकता, तो उसी तरीके से ये लोग जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन हमारे भाई लोग जो सो पता नहीं इनका कैसा तवक्कुल है अल्लाह पर, क्योंकि कुरान और हदीस को जानते नहीं, तो इस दलील को जो सो वो उल्टी तौर पर देते हैं और ये दावा करते हैं कि अगर अल्लाह चाहेगा तो वो जरूर जाएगा। अरे अल्लाह चाहेगा तो सब